स्कूल कैप्टन गर्ल्स स्वागत के अगले सोपान पर स्कूल कैप्टन बॉयज विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रवनीश श्रीवास्तव का स्वागत करेंगे। स्कूल बॉयज कैप्टन अमन बिना समय गवाए हम ले चलते हैं आपको रूप से धर्मो रक्षत रक्षतय के साथ यदा यदा के धर्म यह बहुत दुष्कर्म है तो फिर न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। आइए इस विषय वस्तु पर कि भारतीय न्याय प्रणाली क्या कहती है, सबसे पहले हम आवाज देंगे रेड हाउस के पार्टिसिपेंट्स वैभवी सिंह, तालियों से स्वागत। Which is Yato Dharmastate Jayate. It means truth alone prevail. Do you know what is it? It is the slogan of our Indian justice system. Our Indian justice system is a vital component of democratic framework and ensuring the protection of indivisibles' human rights and in the maintenance of law and order in our society. Our Indian justice system has a common legal system which is based on the judicial precedent, which was inherited by the British colonial legacy. The court structure of our Indian justice system consists of three types of court. First one is Supreme Court, which is the apex court of our country. Second one is High Court, which is 25 in number in our country, and the subordinate court, which is at district level, municipal level, and at the village level. Now focus on the some features of the Indian justice system. Indian justice system is act as a guardian in order to protecting the indivisible rights and act as a guardian, and it also ensures those people who violate the action, they were accountable to their action. And the second point is that our Indian justice system is so transparent. It can be clarified by the given point, such as it have both prosecution as well as defense in the same court in front of the judge and the guilty. While in our country, the court listens the arguments of the both guilty one and the innocent one. So, it was the legislation invalid, which is
executive. Do you know guys what is independent body? So our judiciary is totally independent. It is independent. No one can interfere judiciary. And we can also conclude that our judges are free to take any decision without a fear or favor. And judiciary is totally independent. No one can. Everyone respect our decision of judiciary. Now, but have you think that judiciary sometimes misuse their power? Yeah, sometimes. Like in India, judiciary is considered to be the privileged position, as we all know that. Sometimes the judges and the courts misuse their power, and like India is sometimes considered to be the country where we know that everyone has right, equality, but they sometimes misuse the power of judiciary and more. Let's talk about the role of judiciary. So first thing is that it is the guardian of our constitution. Means that our Supreme Court is the highest court of India, and it can declare any of the right, any of the thing. It's on the conflict. Nothing is perfect. Everything has two sides. एक positive side होती है, one is negative side. So the thing is that अगर judiciary आप ना perfect है, ना ही मैं perfect हूँ, तो हम अपने judiciary से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी judiciary perfect हो? So definitely judiciary is always also not perfect, guys. So we have to work together upon it, and we all the people who suffering from justice. So we all have to work upon it and fight for their justice. Thank you so much. On a very important topic, that is Indian justice system. Dr. B.R. Ambedkar once said that justice is a culmination of liberty, equality and fraternity, which is very related to our judicial system. Judiciary, which means the branch of government that interprets the law, settles dispute and administers justice to all citizens. Without law and order, any country could easily enter into a situation of crisis and chaos may prevail. So it is very necessary to have an effective law and order system which can be ensured by a good and unbiased judiciary system. This has become the most important pillars of our Indian judiciary, including the legislature, the executive and the judiciary, which sustain the horizontal division of power. Entering into the history of Indian judiciary, we found that it has far more complex term, with much variation in the Vedic ages, after that in the Gupta period, in the Mauryan Empire, but the existence of Indian judiciary prevailed from the British East India Company with the other colonial powers and Indian princely states. First courts that have started साल तक किसी के निर्वाचित पद पे रहने से उनको अयोग्य करार दे दिया गया था। इसलिए जब भारतीय न्याय प्रणाली की बात होती है तो इस केस को हमेशा उजागर किया जाता है कि कैसे भारतीय न्याय प्रणाली पे सत्ता पर नियंत्रण रखा था। 16 दिसंबर 2012 को घटित इस घृणित अपराध में जो 6 लोग शामिल थे उनको पूरा देश जानता था। फिर भी उन्हें न्याय देने में न्याय प्रणाली की कमियों को दर्शाता है कि कैसे निष्पक्षता और संचालित अच्छे से किया जाना चाहिए हमारी न्याय प्रणाली को। यह केस भारत कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना से हम कानून के इंसाफ मिलने में जो देरी हो रही है उसको रोक सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है चश्मदीद गवाहों की सुरक्षा करना और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता को बनाए रखना। अंत में आप सबसे बस यही कहना चाहूंगा कि मार्ग में इतना अटल है न्याय के लिए कि वो अपने न्याय के मार्ग से एक तिल भी विचलित नहीं होता। ये है हमारे आर्यवर्त की न्याय प्रणाली। नमस्कार यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन, महानुभाव एवं यहाँ उपस्थित युवा सभी। मैं पूर्वा यादव अपने हाउस का नेतृत्व करते हुए आज आप सभी के समक्ष अपने विचार रखती हूँ। भारतीय न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे शक्तिशाली एवं स्वतंत्र न्याय प्रणालियों में से एक है। हमारी न्याय प्रणाली हमारे मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। हमारी न्याय प्रणाली कॉमन लॉ पर आधारित है, यानी कि आम कानून। हमारी न्याय प्रणाली न्यायमूर्ति सागर धवन जी का मानना है कि हमारी न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे प्राचीन एवं पुरानी न्याय प्रणाली है। इससे अधिक पुरानी न्याय प्रणाली है ही नहीं। प्राचीन न्याय प्रणाली की कुछ खास बातें मैं बताऊंगी। उनमें क्षमता, शिक्षा, निष्पक्षता, स्वतंत्रता की बातें इतनी अधिक थी कि प्राचीन राष्ट्रों के मानक उनके प्रति बहुत अधिक थे। उन मानकों को आज तक कहीं पार न किया जा सका। इतनी अच्छी प्राचीन न्याय प्रणाली होने के बावजूद आज हम भारतीयों के बीच तारीख पे तारीख और अंग्रेजी संवाद अपराधी नहीं ठहराया जाता। हो सकता हो उसने अपराध
topic, Indian justice system, and after that, you have to participate in debate competition. So you have prepared very well, and you have said very well. All the houses have done very well. Congratulations to you people. आज का जो मुद्दा था बच्चों, न्याय प्रणाली था। निश्चित रूप से ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। न्याय प्रणाली किसी भी समाज का, किसी भी देश का बैकबोन होता है। अगर न्याय में देरी होती है या गलत न्याय दिया जाए तो हमारा समाज दूसरे रास्ते पर, अन्याय के रास्ते पर चलने लगता है। कहीं ना कहीं हमें, हमारे अंदर भय खत्म हो जाता है। बच्चों, न्याय हो और समय पर हो। किसी गलत निर्देश को सजा न मिले, उसके साथ अन्याय ना हो, ये न्याय का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। हमने एक फिल्म देखी थी, अंधा कानून। शायद मौका मिले तो कभी आप देखिएगा। उस फिल्म को देखने के बाद पछतावा हो रहा था कि कैसे अन्याय हो गया। जो एक्टर था उसे निर्दोष वो था, उसके बाद उसे सजा मिल गई, और जो सजा उसने भुगता, उसके बाद जब बाहर आया और पता चला कि ये निर्दोष था, तो उसके जो बीते दिन थे वो कैसे वापस आ सकते थे। किसी निर्दोष को सजा मिल जाए, 10 साल 5 साल अगर जेल में चला जाए और वापस आने के बाद पता चले कि ये निर्दोष था, तो क्या उसके बीते समय वापस आ सकते हैं? तो बहुत ही सेंसिटिव मैटर का बहुत सोच समझ कर इस विषय का चुनाव किया गया। बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ आप आए और भारतीय न्याय प्रणाली पे अपने विचार रखें। यहाँ पे क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, दोनों पहलुओं पर आपने बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी बातों को रखा। कुछ बिंदुओं को आपने बताया कि जहां सुधार होने की आवश्यकता है, कुछ सुधार हो चुके हैं और हमें आगे और भी जो है सुधार करने की जरूरत है। और अल्टीमेट सोर्स हमारा लास्ट में हम न्याय की शरण में ही जाते हैं। बच्चे ने भी कहा कि आई विल सी यू इन कोर्ट। जब कोई चारा नहीं जाता है तो हम कहते हैं कि हम देख लेंगे तुम्हें, कोर्ट में ले आएंगे। आप न्याय पर विश्वास बनाए रखें और किसी व्यक्ति के साथ गलत ना होने दें, इस बात का ध्यान दें। हमें सामाजिक प्राणी है, हमें अपने समाज का ख्याल रखना है। एक बार फिर बच्चों, आप बधाई के पात्र हैं। आपके हाउस इंचार्ज भी बहुत मेहनत किए हैं। बहुत बहुत बधाई आपके हाउस इंचार्ज को इतनी तैयारी के साथ, और इतने अच्छे अच्छे स्लोगन यहाँ लिखे हुए हैं। आधी बात तो हमें यहीं से समझ में आ गई कि आप कितनी तैयारी ले आए हैं। एक यहाँ पे मॉडल बना करके रखा गया है जो भारतीय न्याय प्रणाली, भारतीय न्याय व्यवस्था को दर्शाता है। बहुत अच्छा प्रयास आपने किया, मन से आपने तैयारी किया। रिजल्ट डिसाइड करना एक कड़ी है, एक प्रक्रिया है। रिजल्ट हमारे हाथ में है। यकीन मानिए कि रिजल्ट आपकी क्षमता को कहीं भी प्रभावित नहीं करेगा। आपको रिजल्ट से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 160 160 मार्क्स का था।